Good morning, student. Myself Chirag Sukhani, and I'm going to teach you financial management subject. And we will continue our chapter that is dividend policy, and in that there is an Walters model. So today we will start the eighth sum. Now the question is determine market value of the equity share of a company from the following information as per Walters model. Okay, so first क्या पूछा आपको डिटरमाइन करना है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज पर द वॉल्टर्स मॉडल. क्लियर? एंड द इंफॉर्मेशन इज गिवन. अर्निंग ऑफ द कंपनी ₹5 lakhs, डिविडेंड पेड ₹3 lakhs, नंबर ऑफ शेयर्स 1 lakh, प्राइस अर्निंग रेशियो 8%, rate of return on investment 15%. Then another question is asked, are you satisfied with the current dividend policy of the firm? If not, what should be the optimum dividend payout ratio? Clear? So यहाँ पे दो टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा. फर्स्ट इज व्हाट? डिटरमाइन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्राइस ऑफ द शेयर कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन करना है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन. ओके, and information में earning of the company is given, total dividend is given, number of share is given, price earning ratio is given, and the rate of return on the investment is given. Then after another question is asked, are you satisfied with the current dividend policy of the firm? If not, what should be the optimum dividend payout ratio? Clear? Now यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दिया और यहाँ पे वॉल्टर्स मॉडल, तो आपको पता है कि वॉल्टर्स मॉडल में मेन क्या क्या चाहिए? अर्निंग पर शेयर चाहिए, डिविडेंड पर शेयर चाहिए, दैट इज ई डी चाहिए, देन आर चाहिए, रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, एंड द के ई दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, एंड देन डिविडेंड पे आउट रेशियो चाहिए. ओके, नाउ इन दिस सम टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी इज गिवन, ईपीएस इज नॉट गिवन, total dividend paid is given but dividend per share is not given, and here number of shares is given, then price earning ratio is given, and the rate of return on the investment is given. Now rate of return on the investment R is given. Okay, so R खाली यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया है. ओके, तो यहाँ पे आपको सर्टेन फॉर्मूलाज याद रखने पड़ेंगे. सो मैं यहाँ पे नोट्स लिख रहा हूँ. सो फर्स्ट नोट क्या होगा कि के इज नॉट गिवन ना आपको, KE that is equity capitalization rate, KE is not given. So यहाँ पे आपको फॉर्मूला डालना है. So when KE is not given and PE ratio is given, ये price earning ratio, PE ratio is given, then use formula for calculation of KE. Use formula for the calculation of KE. Okay, so what is the formula? KE is equal to 1 upon price earning ratio. ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. KE का फॉर्मूला क्या है? 1 upon price earning ratio. ओके, तो ये कब यूज करना है? When KE directly is not given but price earning ratio is given, then we have to use this formula, that is cost of equity is equal to 1 upon PE ratio. Clear? Now another note, ये first note हुआ और first formula. Another second. Now when total earning of the company is given, directly earning per share is not given. Actually मैंने आपको आगे वीडियो में भी तो समझा दिया था, but यहाँ पे again total earning of the company is given and the number of share is given. So based on that we can calculate the earning per share, that is EPS. Okay, so second क्या होगा? When total earning is given, when total earning is total earning as well as number of share, as when total earning as well as number of shares is given, then use formula for calculation of EPS, calculation of
earning per share. So what is the formula of EPS? EPS E. EPS को हम लोग E डिनोट करते हैं ना. So EPS is what? Total earning divided by number of shares. ओके तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है. आपको अर्निंग पर शेयर कैसे मिला? पर शेयर बेसिस कैसे मिलेगा? टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर. क्लियर. नाउ अगेन फॉर्मूला में आपको डी चाहिए, बट यहाँ पे टोटल डिविडेंड इज गिवन. डिविडेंड पर शेयर इज नॉट गिवन ना. ओके सो थर्ड नोट और थर्ड फॉर्मूला, व्हेन टोटल डिविडेंड इज गिवन, व्हेन टोटल डिविडेंड as well as number of shares is given, then use formula for calculation of DPS, that is dividend per share. So what is the formula? DPS is equal to total dividend divided by number of share. Total dividend divided by number of share. Okay, so ये मेन आपको याद रखना है कि when the price earning ratio is given, when price earning ratio is given and KE is not given, तो वो केसेस में आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है? KE is equal to 1/P ratio. Then earning per share is not given, but total earning is given and the number of share is given. So then we have to use this formula कि earning per share is equal to total earning divided by number of share. Likewise, total dividend is given as well as number of share is given, but dividend per share is not given. So we have to use this formula, that is dividend per share is equal to total dividend divided by number of shares. So ये formula आपको याद रखना पड़ेगा. Okay, now अभी हम लोग आंसर्स कैलकुलेट कर रहे हैं. सो फर्स्ट हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? अर्निंग पर शेयर, EPS. ओके अभी EPS का फॉर्मूला क्या है? टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर. क्लियर. सो टोटल अर्निंग कितना दिया है यहां सम्स में? 5 lakhs इज गिवन. टोटल अर्निंग 5 lakh इज गिवन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर. नंबर ऑफ शेयर कितना दिया है? 1 lakh. सो 5 lakh डिवाइडेड बाय 1 lakh, अर्निंग पर शेयर क्या आएगा? ₹5 पर शेयर आएगा ना. सो अर्निंग पर शेयर इज व्हाट? ₹5. लाइकवाइज हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिविडेंड पर शेयर, दैट इज DPS. सो DPS का फॉर्मूला, डिविडेंड क्या मिलेगा? टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर. क्लियर. सो टोटल डिविडेंड सम्स में कितना दिया है? टोटल डिविडेंड 3 lakhs. क्लियर. सो टोटल डिविडेंड 3 lakhs, देन नंबर ऑफ शेयर 1 lakh. सो आपका आंसर क्या आएगा? ₹3. क्लियर. सो E अर्निंग पर शेयर, E क्या आएगा? 5 एंड DPS दैट इज D क्या आएगा? 3. क्लियर. नाउ ये सम्स में आपको KE भी नहीं दिया था, सो हम लोग KE कैलकुलेट करेंगे. सो KE इज व्हाट? 1/PE रेशियो. PE रेशियो इज व्हाट? प्राइस अर्निंग रेशियो. क्लियर. सो 1 का 1 डिवाइडेड बाय प्राइस अर्निंग रेशियो सम्स में कितना दिया है? 8% ना. सो 1/8%. नाउ जैसे आप 1/8% करोगे तो आंसर किस में आ गया? परसेंटेज में 12.5%. ओके बट हम लोग को ऑलवेज परसेंटेज निकालेंगे. सो 12.5% डिवाइडेड बाय 100 करेंगे. सो आंसर क्या आएगा? 0.125. 0.125. ओके सो 0.125 क्या आपका? KE. ओके सो हम लोग को जो सम्स में कैलकुलेट करने के लिए चाहिए, E मिल गया, D मिल गया, K भी मिल गया. क्लियर. अभी क्या बचा? R, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न ऑन द फर्म्स इन्वेस्टमेंट. R बाकी है. ओके सो R हम लोग R तो सम्स में डायरेक्टली दे ही दिया, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट. सो R इज व्हाट? 15%. 15% यानी 0.15. Clear. So based on this information we can easily calculate the price, that is market value of the equity share. Clear. But
आपको पता है कि हम लोग ने जितना भी आगे सम्स किया ना उसमें आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया था। क्लियर? क्या दिया था आपको? डिविडेंड पे आउट रेशियो, दैट इज 0% दिया था, 20%, 40, 100 जो भी दिया होगा। ओके, सो वो सम्स में डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया था ना। वो डिविडेंड पे आउट रेशियो के बेसिस पे हम लोग ने डी कैलकुलेट किया था, और डी कहां पे मिलता है? अर्निंग पर शेयर पे, बराबर। बट ये सम्स में तो आपको डायरेक्टली डिविडेंड दे दिया है। ओके, सो हम लोग बेस्ड ऑन दिस, that is EPS is 5 given and the dividend per share is 3 rupees is given. Now based on this information we can find out dividend payout ratio based on the cross multiplication. Clear? So how we can find out the payout ratio? So हम लोग find out करेंगे dividend payout ratio. Now dividend payout ratio ये क्यों जरूरी है? बिकॉज हम लोग को कंक्लूजन देना है, आर यू सेटिस्फाइड विद द करंट डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म। सो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्चुअली नहीं बोला है बट फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे मिलता है कि आपका ईपीएस 5 रुपीज था, वो टाइम पे कंपनी ने आपको डिविडेंड पर शेयर कितना दिया? 3 रुपीज दिया। सो 100 पे कितना डिविडेंड मिलेगा? क्वेश्चन मार्क। ओके, सो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दैट इज 3 into 100 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 300 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स व्हाट? 60% कंपनी ने डिविडेंड पे आउट दिया था। 60%। नाउ 60% सही है या गलत है ना, हम लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको पता है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? अर्निंग पर शेयर। सो 5 का 60% निकालोगे, सो 5 का 60% निकालोगे तो कितना आएगा? 5 into 60% आया ना 3। सो हम लोग का आंसर राइट कि 5 का 3 डिविडेंड दिया था, और 60% 5 का निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? 3। यानी कंपनी ने ये सम्स में कंपनी ने डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना दिया था? 60%। क्लियर ऑल ऑफ यू? नाउ बेस्ड ऑन दैट वी कैन कैलकुलेट द प्राइस ऑफ द शेयर, बिकॉज आपको यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ना कि डिटरमाइन मार्केट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर। सो हम लोग को पहले बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्राइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो प्राइस P इज व्हाट? D प्लस R अपॉन KE इंटू ब्रैकेट E माइनस D अपॉन K। तो ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही रखना है ना। D एक्चुअली अर्निंग पर शेयर के ऊपर हम लोग ने पे आउट कैलकुलेट किया था 60%। ओके, बट यहाँ पे तो D डायरेक्टली दे ही दिया। इधर आप ये फाइंड आउट करोगे, डीपी रेशियो फाइंड आउट करोगे तो आप 60% से भी आंसर 3 आने वाला है, बट यहाँ पे जरूरी नहीं ना, आपको यहाँ पे दे ही दिया है, आपको यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर दे ही दिया है। डिविडेंड पर शेयर कितना है? 3 रुपीज है। क्लियर? सो यहाँ पे डी डायरेक्टली आ जाएगा, दैट इज 3 प्लस आर सम्स में दिया था आर 15% यानी 0.15। के जो हम लोग ने फाइंड आउट किया, के पे कैसे फाइंड आउट किया? के इज इक्वल टू 1 अपॉन पी रेशियो। ओके, दैट इज 12.5% यानी 0.125। ओके, सो के हम लोग ने फाइंड आउट किया 0.125 इंटू ब्रैकेट ई भी हम लोग ने फाइंड आउट किया 5 रुपीज माइनस 3 डिविडेंड आएगा डिवाइडेड बाय के 0.125। सो 3 का 3 रहेगा प्लस 0.15 डिवाइडेड बाय 0.125, आंसर क्या आएगा? 1.2 इंटू ब्रैकेट 5 माइनस 3 2 डिवाइडेड बाय 0.125। सो 3 का 3 प्लस 1.2 इंटू 2 कितना आएगा? 2.4 divided by 0.125. Clear? Now 3 plus 2.4 5.4 divided by 0.125. So price of the shares क्या आएगा? ₹43.2. Clear? So आपका फर्स्ट आंसर ओवर, डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फॉर्मूला। बराबर। बट अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, कौन सा क्वेश्चन? Are you satisfied with the current dividend policy of the firm? If not, what should be the optimum dividend payout ratio? Now, ये कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी सेटिस्फाइड है या नहीं है, ये आपको कैसे डिटरमाइन करना है? हाउ इट इज डिटरमाइन? आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा बाय कंपेयरिंग आर एंड के। कंपेयर करना पड़ेगा आर एंड के, फिर बाद में आपको डिसाइड करना है कि आपकी कौन सी टाइप की फर्म है, वेदर इट इज ग्रोइंग फर्म, डिक्लाइनिंग फर्म या नॉर्मल फर्म।
Based on that, we can find out the optimum payout ratio and then we can make a conclusion कि I am satisfied or I am not satisfied. Clear? So आपका second answer का conclusion, ये conclusion based answer है. So by comparing R and KE, because Walter ने तो R and KE से ही समझाया ना सब. So by comparing R and KE, here R is greater than KE है. R is greater than KE है ना, that is 15% is greater than 12.5% है ना. So it is a case of which firm? So it is a case of, tell me, it is a case of growing firm है ना. R is greater than KE, so it is a case of growing firm. Okay, thus for a growing firm, what is the optimum payout ratio? Thus the optimum payout ratio should be, कितना होना चाहिए? ग्रोइंग फर्म में ऑप्टिमम पे आउट रेशियो शुड बी 0%. क्लियर? but in this sum the payout ratio कितना दिया था? payout ratio हम लोग ने कैलकुलेट किया था ना. but in this sum payout ratio is what? 60%. okay, so आपका कंक्लूजन क्या होगा? hence I am not satisfied with current dividend policy of the firm. Clear all of you? So we have to compare R and KE and then we make a conclusion whether it is R is greater than KE or R is less than KE. But in this sum R is greater than KE. So it is a case of which firm? It is a case of growing firm. And for a growing firm the optimum payout ratio should be 0%. But in this sum कंपनी ने कितना पे आउट रेशियो दिया है? कंपनी ने 60% पे आउट रेशियो दिया. तो आपको कैसे पता चला कि कंपनी ने 5 रुपीज अर्निंग पे 3 रुपीज डिविडेंड दिया था, तो 100 पे कितना आएगा? ओके, तो कंपनी ने कितना परसेंटेज दिया था? 60%. सो ये सम्स में आपका पे आउट रेशियो कितना है? 60%. बट ये तो ग्रोइंग फर्म है, सो ग्रोइंग फर्म के लिए ऑप्टिमम पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए? 0%. बट इन दिस सम पे आउट रेशियो इज व्हाट? 60%. सो मेरा आंसर क्या आएगा? Hence, I am not satisfied with the current dividend policy of the firm. Okay. Now, अभी आप किसे पता चलेगा कि 0% पे ही 0% बेस्ट है या नहीं? सो आप यहाँ पे इनडायरेक्टली प्राइस कैलकुलेट करना है आपको. प्राइस ऑफ शेयर एट द रेट ऑफ 0% पे आउट पे आप कैलकुलेट करोगे. ओके, सो फॉर्मूला तो सेम, D प्लस R अपॉन K इंटू ब्रैकेट E माइनस D upon K. Clear? Now D 0% पे आउट. ओके, अर्निंग पर शेयर कितना है? 5 रुपीज है ना. सो 5 का 0% D क्या आएगा? 0 प्लस R तो आपको सम्स में दे ही दिया है, दैट इज 0.15%. K हम लोग ने फाइंड आउट किया 0.125 इंटू ब्रैकेट अर्निंग पर शेयर 5 एंड डिविडेंड इज व्हाट? 0 डिवाइडेड बाय 0.125. सो 0 का 0 रहेगा प्लस 0.15 डिवाइडेड बाय 0.125. आंसर क्या आएगा? 1.2 इंटू ब्रैकेट 5 माइनस 0 5 डिवाइडेड बाय 0.125. सो 0 का 0 प्लस 1.2 इंटू 5 कितना आएगा? 6 डिवाइडेड बाय 0.125. तो 0 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 0.125. सो 6 डिवाइडेड बाय 0.125 आंसर आएगा ₹48. क्लियर? तो आपको क्लियर कट समझ में आया? अभी आप देखो कि आपका जो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जहां पे कंपनी ने 60% पे आउट दिया था, वो टाइम पे प्राइस ऑफ द शेयर कितना आया? 43.2 रुपीज. बट अगर आप 0% ऑप्टिमम पे आउट रेशियो पे प्राइस कैलकुलेट करेंगे, प्राइस ऑफ द शेयर क्या आएगा? 48 रुपीज. यानी 43 से तो ज्यादा ही है, 48. ओके, सो ग्रोइंग फर्म के लिए ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए? 0%, बिकॉज 0% पे प्राइस ऑफ द शेयर क्या आएगा? 48.
वेरएस कंपनी ने कितना डिक्लेयर किया था 60%, तो 60% में प्राइस कितना आया था 43.2. दैट इज वाई मेरा कंक्लूजन क्या होगा, हेंस आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द करंट डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म. क्लियर ऑल ऑफ यू? सो ये आपका ये पूरा आंसर. नाउ नेक्स्ट सम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट करेंगे. बाय, टेक केयर.